Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Good morning, dear students. Once again, I am in front of you to teach you subject science of chapter 10. And today's lecture we are going to start the part 3 of chapter named Control and Coordination. In previous lecture, that is part of this chapter, we have learned about the structure and function of nerve cells, and after that we have learned about the reflex action. And in today's part we are going to learn about the human brain. So here on the whiteboard you can see the diagram of human brain, and I have highlighted each and every part of the brain. So you can see this is your human brain, and outside you have 3 layers of covering. So that 3 layers of covering is known as meaning. It's a 3 protective layer which is known as meanings. Okay. Now inside that you have this cranium, because the hard part into which our brain is being protected. So that hard part is known as skull, that is cranium, its biological word. Inside you have cerebrum, which is the most complex and the most advanced part of the brain. Okay? This cerebrum is the most complex, very complex part of the brain. Okay? Then you have this forebrain, because your human brain is being divided into 3 parts: forebrain, midbrain and hindbrain. These 3 are the parts into which your human brain has been divided. Now into each part, which type of organs are present, what is their function, what type of work they do, or what type of activity they control, that we are going to learn. Okay, so for that just move on to this part. As I told you, our human brain is divided into 3 parts, that is forebrain, midbrain and hindbrain. Starting with forebrain. Now forebrain, it consists of cerebrum, which is the main thinking part of the brain. As I have told you, forebrain consists of cerebrum, which is the most complex part of the human brain, as well as it is the thinking part of the brain. यानी जो भी सोचना है, समझना है, जो भी करना है ना, वो सारा thinking process, thought process, actually, that is being done in this part of the brain, that is cerebrain, which is present in forebrain. Now apart from this, in our next lecture also we have learned ki whatever the message, information from various parts of the body, it is being sent to the brain through spinal cord by means of sensory neurons. So all the message which are being sent to the brain, all those messages are received by this part of the brain only. That is cerebrum receive the various messages coming from all the parts of the body. Then cerebrum receive them by various means. यानी जो भी मैसेज आता है ऐसे नहीं कि सारा ब्रेन फोरब्रेन में चला जाएगा, ऐसे नहीं. हर एक मैसेज को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है. मतलब हर एक मैसेज एक पर्टिकुलर पार्ट के पास ही जाता है. यानी फोरब्रेन के अंदर जो सेरिब्रम है, उसके बाद भी बहुत सारे डिफरेंशिएटेड लोब्स है, and each and every lobe has some special message to receive. और वो जो स्पेशल मैसेज है मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जैसे वहाँ 4 लोब हैं आपके सेरिब्रम के अंदर, 4 लोब्स हैं. फर्स्ट इज ऑसिपिटल लोब. तो ये जो ऑसिपिटल लोब यानी रीजन, लोब मींस वन टाइप ऑफ रीजन ऑफ सेरिब्रम. तो इसका काम क्या है? इट विल रिसीव द विजुअल रिसेप्शन. यानी जो भी चीज आप देख रहे हो, तो वो क्या देख रहे हो, वो क्या है, किस तरह का है, उसका शेप क्या है, वो सारी विजुअल रिसेप्शंस कौन करता है? ऑसिपिटल लोब. देन वी आर हैविंग temporal lobe. So what work does it do? It receive various auditory, यानी आप जो चीजें सुनते हो ना ईयर से, आपने क्या सुना, आवाज हाई था, लो था, ठीक है. So all type of auditory reception is done by temporal lobe. Then we are having parietal lobe. Parietal lobe receive the means receptions like smell. Suppose आपको किसने टच किया, ठीक है, so टच किस टाइप का था, ठीक है, हार्ड था, सॉफ्ट था, that is done by this parietal lobe. then smell, ठीक है, आपने जो चीजों को स्मेल की तो उसकी
it's a bad smell, a good smell, है ना? So that type of things are done by this parietal lobe. Apart from that, temperature, that means whatever the temperature changes take place surrounding you in the atmosphere, so accordingly your body has to coordinate with the temperature change. So that has been done by means of again parietal lobe. So parietal lobe does the three things: smell, touch and temperature. ठीक है? Now we have having frontal lobe. So frontal lobe, all the voluntary and involuntary activities apart from this memory and thought process. Okay, यानी जितनी भी voluntary यानी वो activities जो हमारे brain के कहने पे होती है, यानी जैसे मुझे वहाँ जाना है तो मैं जाऊँगा, तो मैं क्यों गया? Because brain ने मुझे allow किया. So it's voluntary. यानी जो चीजें हम हमारे will power से कर सकते हैं उसे voluntary कहा जाता है. जो हमारे will power के बिना अपने आप हो जाती है, without taking consideration of our brain, so that is involuntary activities. So इन दोनों तरह की activities को frontal lobe supervise करता है. Okay, apart from this memory and thought, यानी बोलते हैं ना बच्चों को बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है, बहुत सारा रट्टाफिकेशन होता है, तो रट्टाफिकेशन में जो भी आप मेमोरी है, तो आपकी जो मेमोरी पावर है कहाँ है? अगेन सेरिब्रम के पास, बिकॉज उन सब चीजों को स्टोर करने का जो पावर है वो सेरिब्रम के पास है. That again is done by this lobe, that is frontal lobe. यानी आप जो भी चीजें याद करते हो, लर्न करते हो, तो ऐसा मेमोरी उसको स्टोर सेरिब्रम के फ्रंटल लोब में किया जाता है. अपार्ट फ्रॉम दैट थॉट प्रोसेस, बैठे बैठे हम सोच रहे थे कि मुझे कल यहाँ जाना है, मुझे कल वहाँ जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे बड़ा होकर ये बनना है, उसके लिए मुझे ये करना है, मुझे कल क्रिकेट खेलने जाऊँगा तो मुझे ऐसे ऐसे शॉट्स मारना है. तो ये जो थॉट प्रोसेस होता है, तरह तरह का थॉट प्रोसेस, जो इंसान हमेशा कभी भी अकेले बैठे हो तो आपने देखा आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट प्रोसेस आते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है ना? तो ये सारे थॉट प्रोसेस कहाँ होते हैं? अगेन इट इज डन इन फ्रंटल लोब. सो forebrain, it has the main part which is known as cerebrum, which is the most complicated part of the brain. Also it is known as thinking part of the brain. It has various lobes to receive various types of message or information from various parts of the body, in which we are having occipital lobe for visual reception, temporal lobe for auditory reception, parietal lobe for smell, touch and temperature, frontal lobe for voluntary and involuntary activities, as well as memory and thought. Okay, after that we are having midbrain. ठीक है, तो मिड ब्रेन जो है उसका जो सेंट्रल पार्ट है, बिकॉज मिड ब्रेन इज फाउंड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ आवर ब्रेन. सो जो मिड ब्रेन है उसका जो सेंट्रल मैक्सिमम पार्ट है, दैट सेंट्रल मैक्सिमम पार्ट इज नोन एज corpora quadrigemina. Corpora quadrigemina, that is central part of the midbrain. It is the central part of the midbrain. Centers for visual and auditory reflexes are located here. यानी देखो फोरब्रेन ने क्या किया, सारे विजुअल और ऑडिटरी मैसेज को रिसीव किया एज अ एक्शन. अब इसका रिएक्शन देना पड़ेगा ना, सो दैट रिएक्शन, उसके जो रिफ्लेक्सेस देने हैं कि आपको उसका जो आंसर देना है, दैट आंसर इज गिवन बाय दिस corpora quadrigemina. उसको ये रेगुलेट करता है. व्हाट आर द रिफ्लेक्सेस आर डन फॉर रिलेटेड टू विजुअल एंड ऑडिटरी, ठीक है, थिंग्स इज डन बाय द corpora quadrigemina. Then apart from that we have a hypothalamus. You can see this is hypothalamus. Okay, this part is hypothalamus. So what hypothalamus does? Hypothalamus control and regulate blood pressure, hunger, thirst, control functioning of eyes and ears. ठीक है, रेगुलेट ब्लड प्रेशर. आपका जो ब्लड प्रेशर हाई या लो होता है वो कौन रेगुलेट करता है, उसे कौन कंट्रोल करता है? अगेन हाइपोथैलेमस. ठीक है, आपको जो भूख लगती है, कभी कभी नहीं पेट खाली हो जाता है, भूख लगती है, तो कैसे आपको फील आता है अंदर से कि हाँ भी मुझे भी भूख लगी है, मुझे खाना खाना चाहिए, मुझे नाश्ता करना चाहिए. तो ये फीलिंग कहाँ से आती है? हाइपोथैलेमस की वजह से. ठीक है, प्यास लगती है क्योंकि बहुत देर से मैंने पानी नहीं पिया, मेरा गला सूख रहा है, तो ये फीलिंग आपको कौन देता है? अगेन इट इज डन बाय हाइपोथैलेमस. अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी जो आईज और ईयर्स की जो फंक्शनिंग है वो भी कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस. सो इट इज दी very much important part of our midbrain because it control our blood pressure, it regulate our thirst and hunger, it also control the function of eyes and ears. Okay, so these two are the main parts of the midbrain, that is hypothalamus and corpora quadrigemina. Then we are having the third and the lower part, in this part, this lower, because this is your
frontal lobe, forebrain. This is your midbrain, and this is the lower part which is known as hindbrain. It is known as hindbrain, and it has pons, cerebellum and medulla. These three are the important parts of the hindbrain. ठीक है, and first we have pons. ठीक है, pons regulate the process of respiration, and whatever the process of respiration. Now what is the process of respiration? The process to derive the energy from the digested food. That is known as respiration, जिसमें inhalation, exhalation, है ना, oxidation process done by the cells. All those processes are included in the respiration process. So that respiration process is controlled and regulated by pons, which is present in the hindbrain. Then we are having cerebellum. So cerebellum क्या करता है? It's maintain the balance of the body posture. See, हम कहीं भागते हैं, रुक जाते हैं, हम बहुत सारे डांस एक्टिविटीज करते हैं, तो उस टाइम हमारा जो बॉडी का जो बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो जाता है ना। लेकिन कभी कभी हम गिरते गिरते खुद को संभाल लेते हैं, क्यों? तो ये हमारे बॉडी का बैलेंस कौन कंट्रोल करता है? दैट इज कंट्रोल्ड बाय सेरिबेलम। आपने देखा जो लोग ड्रिंक करते हैं, ठीक है, अल्कोहल पीते हैं, तो वो क्यों गिर जाते हैं? बिकॉज जब दे ड्रिंक द अल्कोहल, अल्कोहल क्या करता है? सेरिबेलम को डीएक्टिवेट कर देता है, उसकी जो सेंसेस है उसको खत्म कर देता है, ठीक है, जिससे आप इम्बैलेंस हो रहे हो। तो आप इम्बैलेंस हो रहे हो, वो मैसेज जो है, बिकॉज मैंने कहा जब भी हमें बॉडी में कुछ भी होता है तो उसका एक मैसेज बनता है, दैट मैसेज इज सेंड टू द ब्रेन, ठीक है। लेकिन जब आप बहुत जो लोग अल्कोहल पीते हैं, तो जब उनकी बॉडी इम्बैलेंस होती है, तो अल्कोहल क्या करता है कि सेरिबेलम की एक्टिविटी को डीएक्टिवेट कर देता है, उसकी सेंसेस को खत्म कर देता है, जिससे सेरिबेलम को पता ही नहीं चलता कि बॉडी इम्बैलेंस हुई है, इससे इंसान गिर जाता है। लेकिन जो नॉर्मल लोग होते हैं वो जब गिर रहे तो तुरंत अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं। जैसे साइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो नहीं साइकिल को हम कैसे टेढ़ी मेढ़ी चलाते हैं, बाइक पे हम उल्टी सीधी चलाते हैं, तो हम गिरते नहीं है, हम तुरंत हमारी बॉडी को बैलेंस कर देते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ दिस सेरिबेलम। सो व्हाट इज द मेन फंक्शन परफॉर्म बाय द सेरिबेलम? टू मेंटेन द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इज मेडुला। मेडुला ये जो लास्ट यानी जहां से आपकी स्पाइनल कॉर्ड शुरू होने वाली, तो स्पाइनल कॉर्ड से जस्ट ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, दैट इज मेडुला। यू कैन सी यहां लिखा है, दिस इज द मेडुला। अब ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो गई। सो ये जो मेडुला है, इट कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्टिविटीज, सारे इनवॉलंटरी एक्टिविटीज हैं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, ठीक है। जैसे आप हम बोल रहे हैं, तो क्या मेरा ब्रेन बोल रहा है सांस लेने के लिए, इनहेलेशन एक्सहेलेशन करने के लिए ब्रेन कमांड दे रहा है मेरे नोज को या मेरे लंग्स को, ठीक है। मेरा जो हार्ट है वो 24/7 पंपिंग करता है, ब्लड की पंपिंग करता है, तो उसके लिए ब्रेन उसको बोलता है नहीं। ऐसे बहुत में बहुत, जैसे आपकी किडनी है, किडनी को ब्रेन ऑर्डर देता है कि आप जो भी लिक्विड है उसको फिल्टर करो, ठीक है। या ये जो ब्रेन है वो हमारे इंटेस्टाइन को कमांड देता है कि जो भी फूड आया है उसको डाइजेस्ट करो, उसको एब्जॉर्ब करो। तो ये बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज है, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ये जो हमारी एक्टिविटीज है, ब्रीथिंग, ये सारी जो एक्टिविटीज है ना इनवॉलंटरी एक्टिविटीज है। इसे ब्रेन कंट्रोल नहीं करता, ब्रेन इसको कमांड नहीं देता, ये अपने आप होती रहती है बाय डिफॉल्ट 24/7 बिना रुके होती ही रहती है। तो इसे रेगुलेट कौन करता है, कौन करवाता है ये सारी एक्टिविटीज? सो ऑल दोस एक्टिविटीज आर डन बाय द मेडुला, लाइक ब्रीथिंग, हार्ट बीट्स, ब्लड प्रेशर, पैरासाइट। आपने जो खाना खाया तो आपका जो भी फूड है वो पूरे इंटेस्टाइन में मूवमेंट करता है ना, मोशन करता है। सो दैट मूवमेंट एंड मोशन इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो यहां से शुरू होती है, ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल पे ये एंटर। अपार्ट फ्रॉम दैट कंट्रोल रिफ्लेक्सेस लाइक कफिंग, स्नीजिंग, स्वेलिंग, सिक्रेशन ऑफ सलाइवा एंड वॉमिटिंग, यानी हम जो स्नीजिंग करते हैं, छींकते हैं, उसे भी मेडुला कंट्रोल करता है। उसके अलावा जो कफिंग होती है हमें, दैट इज आल्सो रेगुलेट और कंट्रोल बाय मेडुला। हमारी बॉडी में जो स्वेलिंग आ जाती है या कम हो जाती है, उसे वापस मेडुला कंट्रोल करता है। और सिक्रेशन, जैसे हम खाना खाते हैं तो सलाइवा निकालना है, ठीक है, अंदर का जो एरिया ड्राई हो गया तो उसको लिक्विडिफाई करने के लिए सलाइवा सिक्रेट करना है। तो ये सब कमांड कौन देता है, कंट्रोल कौन करता है? सो इट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय मेडुला। अपार्ट फ्रॉम वॉमिटिंग, सपोज आपने कोई चीज खा ली तो वो खराब चीज है, स्पॉइल है, ठीक है, तो तुरंत आपकी बॉडी से एक मैसेज आएगा जिससे आप वॉमिटिंग करके उस चीज को आपकी बॉडी से बाहर निकाल दोगे। सपोज कोई अनवांटेड पॉइजन मेरे बॉडी में चला गया तो तुरंत मैसेज आता है बॉडी को कि इसको बाहर फेंको, तो हम वॉमिटिंग करके उसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये मैसेज देता कौन है, ये कमांड देता कौन है? सो दैट इज डन बाय मेडुला। सो दिस वे आवर ह्यूमन ब्रेन इज बीइंग वर्किंग, ठीक है। दिस इज द डायग्राम फॉर ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। इट्स 3 पार्ट्स, दैट इज forebrain, midbrain, hindbrain, and this forebrain
has this type of thinking part known as cerebrum, having this various lobe to receive various types of information, followed by midbrain having two parts, hypothalamus, corpora quadrigemina, and these are the work done by these two parts. Then hindbrain having pons, cerebellum and medulla. Each is having its own individual activity to perform, specialized activity to perform. Okay students, so in this lecture of today, okay, we learn about the human brain, and it is the most important question. It is going to be asked for 4 marks in your board exam. Okay, so I hope you got the topic. Okay, now as a homework you have to write this question along with the diagram in your science notebook and send it to your concerned subject teacher. Okay, now we'll see you in the next part of this chapter. Till then, take care. Bye bye.